Hello students, in this video I am going to discuss about how to prepare for Science 1 of Standard 10 Maharashtra State Board. So here are the three important steps. First one, plan your studies. Second step, practice all the chapters from the textbook. And the third step, paper. You have to solve chapter wise previous year papers also. So these are the three important P's one can say: plan, practice and paper. Now how to do the planning? So first you have to set your goal. The next step, understand exam pattern, question paper pattern, syllabus. This is very important while doing the planning. Then you have to prepare the timetable for सेल्फ स्टडी. बराबर है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस सी द एग्जाम पैटर्न. देखो अपना जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का है. फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 100. इसमें से थियरी विल बी फॉर 80 मार्क्स. इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पेपर. साइंस 1 40 मार्क्स, साइंस 2 40 मार्क्स. दो अलग दिन पे रहेगा. You will get a 2 hours for writing the paper. 20 marks का practical will be there. So this 80 plus 20 हो गया 100 marks. So this is the first thing. Now let us understand what will be the question paper pattern over here. So there are going to be total 4 questions. कितने questions रहेंगे? 4 questions. इसमें से question number 1. There are 2 sub questions A and B. So A will be 5 questions, 1 mark each, but it will be multiple choice question. क्या रहेगा? Question 1A multiple choice, तो उसका marks हो गया 5 marks. Question number B, 5 questions, 1 mark each, but they are going to be objective type. तो इसमें correlate the things, match the pair वगैरह जैसा रहेगा. So that will be again for 5 marks. Then question number 2A. There are 3 questions, 2 marks each, but this is mainly scientific reasoning. You have to solve any 2. भले 3 questions हैं, but you have to solve any 2. So this will be for 4 marks. Same thing for section 2B. 5 questions will be there, 2 marks each. You have to solve any 3. This will be there for 6 marks. अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कोई भी सब सेक्शंस नहीं है. देयर आर 8 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच. यू हैव टू सॉल्व एनी 5. तो आपको कितना मार्क्स का हो गया? ये 15 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर गोइंग टू बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, बट यू हैव टू सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन एंड दिस विल बी फॉर 5 मार्क्स. तो टोटल सब हो गया 40 मार्क्स का. So 40 marks का पेपर आपको सॉल्व करना है. with all options it will be for 60 marks. So we have to solve 40 marks paper only. Now let us go for chapter wise weightage. देखो science 1 there are how many chapters? 10 chapters are there. उसमें से gravitation chapter 3 marks compulsory आएगा, 5 marks with option. Periodic classification of element compulsory 4 marks, 6 marks with option. Third chapter, chemical reactions and equations, 4 marks compulsory, 6 marks with option. Chapter number 4, effect of electric current, 5 marks compulsory, 7 marks with option. Chapter number 5, heat, 3 marks compulsory, 5 marks with option. Chapter number 6, refraction of light, 5 marks and 7 marks with option. Chapter number 7, lenses, 4 marks compulsory and 6 marks with option. Chapter number 8, metallurgy, 4 marks compulsory, 6 marks with option. Chapter number 9, carbon compound, 5 marks compulsory, 7 marks with option. Chapter number 10, space missions, 3 marks compulsory, 5 marks with option. तो compulsory में 40 marks का paper, with option it will be there for 60 marks. Now let us see how to prepare the different chapters also.
एंड हाउ टू मेक अ टाइम टेबल। पर डे प्लानिंग कैसे करना है, देखो अपने को तो 8 आवर्स स्लीप होना ही चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर स्लीपिंग 8 to 10 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड। आपका स्कूल 5 आवर्स रहेगा, उसके बाद में ट्यूशन विल बी देयर फॉर 2 to 3 आवर्स। सेल्फ स्टडी के लिए आपको कम से कम 3 to 5 आवर्स रखना जरूरी है। अभी इसमें रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट टाइम का भी जरूरत है। सो एक 10 मिनट 15 मिनट मतलब 3 to 5 आवर्स आप कंटिन्यूस मत स्टडी करो। एक 1 आवर स्टडी करने के बाद या 45 मिनट स्टडी करने के बाद यू टेक अ ब्रेक ऑफ से 5 मिनट्स 10 मिनट्स। हियर यू कैन लिसन सम लाइट म्यूजिक और समथिंग ओनली फॉर 5 to 10 मिनट्स, एक हाथ गाना सुना वगैरह ऐसा। देन सुबह या शाम का एक कोई वक्त निकाल के एक्सरसाइज करो। सो और you can watch a TV also for say half an hour. So that will help you to keep yourself fresh. तो आपके ऊपर कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं आएगा। अभी स्टडी प्लान, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया स्टडी प्लान के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न जो अभी डिस्कस किया। तो सिलेबस के अंदर देयर आर हाउ मेनी चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स। जनरली एग्जाम अपना जो है वो फरवरी में रहता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम इज अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन, और वो देख के आपको डिसाइड करना है कि हर एक महीने में 2 या 3 चैप्टर आपका रेडी होना चाहिए। अभी के हिसाब से जाएंगे तो यू हैव टू फिनिश आउट ऑल द थिंग्स बाय December 15। यू हैव टू प्लान इट इन सच अ मैनर कि आपका 10 का 10 चैप्टर बाय December 15 कंप्लीट होना चाहिए। देखो ऑल द चैप्टर्स आर नॉट दैट लेंथी, दे आर नॉट इक्वली लेंथी। जैसे स्पेस मिशन है, सिंपल चैप्टर है, कोई ज्यादा है नहीं इसके अंदर। वरस फिजिक्स का चैप्टर में थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह आपको देखना पड़ता है। केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उधर यू हैव टू प्रिपेयर रिएक्शंस आल्सो, बट बाकी चैप्टर्स नॉर्मल है। तो December 15 तक आप कंप्लीट करते हो तो आपको रिवीजन के लिए दिसंबर का 15 दिन और जनवरी का 30 डेज यू विल गेट इट फॉर रिवीजन, मतलब 45 डेज। उसमें से चलो 10-15 दिन इधर उधर गया क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम एंड सो मेनी थिंग्स विल बी देयर, जर्नल कंप्लीशन एंड वॉट एवर इट में भी, फिर भी आपके हाथ में रिवीजन के लिए 30 डेज बचता है बच्चों। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अभी भी पढ़ाई चालू करोगे और एक अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कम अलोंग विद द फ्लाइंग कलर रिजल्ट्स। 90+ आराम से आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन टाइप रहेगा 1 मार्क। इसमें क्या आएगा, मल्टीपल चॉइस, correlate the terms, match the pair, give the name or a molecular formula, find the odd man out, and for this you have to read the textbook thoroughly। हर एक चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ो और while reading you have to highlight the important things। जो do you know वगैरह जो उधर दिया है वो सब चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, उसका आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिस विल कवर यूर 1A एंड 1B। 1 मार्क क्वेश्चन 1A और 1B में आएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन इट इंक्लूड्स डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ, प्रिंसिपल जैसे ग्रेविटेशन का लॉ जो है वो, व्हेन प्रिंसिपल्स, सर्टन शॉर्ट नोट्स, गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर। ओके, देन गिव रीजन 2 मार्क 3 मार्क में आ सकता है। फॉर दिस यू हैव टू प्रिपेयर the chapters, especially chapter number 3, 4, 7 and 8 over here. These are the chapters what you have to prepare for give reason point of view। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चैप्टर्स को प्रिपेयर गिव रीजन के हिसाब से मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट इसमें से जनरली आता है ये देखा गया। देन केमिकल इक्वेशन, तो भाई 3 ही चैप्टर है केमिस्ट्री के, 3, 8, 9, तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके अंदर जो केमिकल इक्वेशंस है दैट यू हैव टू prepare it nicely, very important। न्यूमेरिकल्स, तो फिजिक्स के अंदर आपका न्यूमेरिकल्स आएगा, so you have to practice solved as well as unsolved numericals from the textbook। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्व करके दिया है उसको भी नजरअंदाज मत करना, उसको भी सॉल्व करके देखो। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो रही है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, हर साल एक आध डायग्राम तो
ड्रॉ करने के लिए भी बोलते हैं, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर। तो उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर चैप्टर नंबर 4, 5 इंटरनल क्वेश्चंस लाइक एक्टिविटी, ट्राई दिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो ये जो एक्टिविटी, ट्राई दिस, ये टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो आपको प्रिपेयर करना है। देन यू हैव टू प्रिपेयर द सेपरेशन मेथड फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 ऑल्सो ओवर हियर। नाउ रीड द टेक्स्ट बुक thoroughly। बच्चे लोग, आपको टेक्स्ट बुक पहले मैंने बताया अच्छे से रीड करना है। दैट विल हेल्प यू to understand the concept, increase your knowledge, which will be useful to you for solving 1 mark questions. Then while reading, you have to mark all the important points such as the definition, law, units, distinguish between type of things. Then you have to note down all these things in a small diary also. You have to write down all the chemical equation. This is very important. मतलब reaction जो भी है चैप्टर नंबर के अंदर वो आपको लिखना पड़ेगा। Then understand the solved numerical. Try to solve the questions and numerical from exercise given below each chapter. देखो केमिकल रिएक्शन जो है वो आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड गो हेड विथ इट। राइटिंग प्रैक्टिस, that is also very important. You have to make the notes for last minute preparation. तो जो मैंने बोला कि note down all these things in a small diary, तो आप शॉर्टकट में सब अपने हिसाब से एक छोटा डायरी के अंदर लिखो, so that it will be helpful to you for revising the entire syllabus effectively in a short time। मतलब जो लास्ट का 30 days मैंने बोला आपको उसमें, और जस्ट डे बिफोर एग्जाम आपको बहुत सारा टाइम वो टाइम पे नहीं रहेगा, यू विल बी अंडर प्रेशर ऑल्सो। तो वो टाइम पे आपका शॉर्ट प्रिपरेशन बुक रहेगा जिसमें केमिकल रिएक्शन सब आपने लिख के रखा है, तो आपको फायदा रहेगा। और बार बार लिखोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नोट डाउन द की concepts such as the definitions, laws, chemical reactions, etc. You have to have a formula list. Of course, फिजिक्स के 3-4 चैप्टर है, बहुत कम फॉर्मूलेज है, वो भी मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा एक, चलो अलग पीपीटी बना के। बट फॉर्मूला लिस्ट आपके पास होना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस का लिस्ट बनाओ, डायग्राम्स प्रिपेयर करो क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। टाइम मैनेजमेंट, अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो बेटा, टोटल मार्क्स 40 है, आपको 2 आवर्स मिलने वाला है पेपर लिखने के लिए, दैट इज 120 मिनट। मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर, 1 मार्क का बोल रहा हूँ मैं, 1 मार्क के लिए आपको 3 मिनट मिलेगा। अभी अपना क्वेश्चन का टाइप क्या है, 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो 1 मार्क का क्वेश्चन अपना 3 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए, बट इफ पॉसिबल यू ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 1 मिनट और 2 मिनट, ताकि बाकी बचा हुआ टाइम है दैट यू कैन यूज इट फॉर 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन। देखो 2 मार्क्स के लिए आइडियल स्पीकिंग 5 to 6 मिनट देना चाहिए, 3 मार्क्स के लिए 9 to 10 मिनट्स, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 12 to 15 मिनट्स। बट ये थियोरेटिकल हुआ। प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा कि आपको पेपर रीड करने के लिए रिक्वायर सम टाइम, थोड़ा सोचने के लिए टाइम लगेगा। तो वो हिसाब से ना, ये जो 3 मिनट्स आ रहा है तो वो 1 और 2 मिनट्स में सॉल्व करो। तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 4 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई करो। 3 मार्क का क्वेश्चन और 5 मार्क्स के लिए यू मे रिक्वायर अ टाइम, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने के लिए लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। अभी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दे दो। यू हैव टू सॉल्व चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स, कि दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ना, क्योंकि कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको समझ में आएगा। यू ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, लास्ट का 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ठीक है, वो भी मैं आपको आइडिया देता हूँ कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका मैं सेपरेट पीपीटी बना दूंगा। सॉल्व मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, एटलीस्ट 2 to 3 पेपर्स ओवर ईयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके वजह से आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू हैव टू रिमेंबर से नो टू द स्ट्रेस। फॉर दिस यू हैव टू अवॉइड द कंपैरिजन। कंपैरिजन सबसे बड़ा अपना शत्रु है, इट्स अ एनिमी ऑफ आवर हैप्पीनेस, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत बार क्या हो जाता है कि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ जाता है तो हम लोग अपना
फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना चालू कर दिया, अरे इसका 5 चैप्टर हुआ, इसका 7 चैप्टर हुआ, इसका सिलेबस ही कंप्लीट हुआ और मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हम लोग सोचते, फिर अपने को टेंशन आ जाते हैं। सो दैट शुड नॉट हैपन, यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आप अपना पढ़ाई जारी रखो, आगे का जो 2-3 महीना बचा हुआ है, you fully concentrate on it, so definitely you will get very good result also. And say no to distraction. अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल है, उसके अंदर का अलग अलग एप्स है, तो while at least studying, तो you try to remain away from the phone। मतलब जो 3 hours 4 hours आप पढ़ाई के लिए देने वाले हो, वो 3 hours 4 hours में आपको मोबाइल को टच करना नहीं है। That is very important that you can hand it your to parents and concentrate on the studies so that you will be able to remember things nicely। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए लेके आने वाला हूँ, साइंस और मैथ्स के लिए। तो please subscribe the channel so that you will also get benefited. Share all these things with your friends so that they will also get benefited.